तुम लोग यहीं पे रुको, हम आते हैं। हमने तो रुकना ही है, क्यों ना ड्रामे का नाम यही रख दें। क्या? तुम रुको और हम आते हैं। The air is so fresh. Don't you like it? It is beautiful. But I'm more pleased to see that you are not annoyed with us anymore. I was wrong. I became emotional without understanding. Sometimes when I think that after another 2-3 months we'll go back, it gives me a very bad feeling. Bosnia has become our second home. Sometimes I feel ashamed. You have done so much for us, and I cannot do anything. As a matter of fact, you can. I can? Tell me. What can I do? Get married before I leave. What are you saying? I'm sorry. It's your life, and I should not, but I don't know how to say it. But I have someone in my mind. You are forgetting one thing. This is not Pakistan. We don't have arranged marriages here. Please don't take me wrong. I'm not trying to arrange your marriage. My only intention is to let you know that someone is madly in love with you. Who? You will see him tomorrow. Can you guess? Who is he? Who is he? He is my friend, Haris. Haris? But his leg. Just wait. Haris! Salam alaikum! Oh, kosher, wa alaikum assalam. Kosher brother, I am very happy that you are coming. Ah, he has done it all. Now I think you both need to spend some time together. I'll pick you up on your way back. Okay, see you then. Haris, don't be shy now. Say everything. Allahi amanat. Allah Mubarak. शेरचांद दिन ब दिन बहुत प्यारा होता जा रहा है। वैसे तो इस उम्र में बच्चों की शक्लें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसकी शक्ल हमेशा तुम्ही से मिलती हुई लगती है। शायद इसलिए
कि मेरे सबकॉन्शियस में ये बात छुपी हुई है कि बेटों की शक्ल हमेशा बाप की तरह ही होनी चाहिए। हालांकि मैं जब भी ये बात सोचती हूँ मुझे तुम्हारा वो वाला जुमला याद आ जाता है कि कुछ आर्मी अफसर्स के बच्चे इसलिए बदशक्ल होते हैं कि वो बाप पे चले जाते हैं। बन्नू से अब्बा और अम्मी आए थे। शेरजान के लिए ढेर सारे तोहफे लेके आए थे, छोटी सी प्यारी सी तिल्ले वाली टोपी और उसी के साथ की वेस्ट कोट और सबसे प्यारी नन्ही मुन्नी सी पिशावरी चप्पल। साथ ढेर सारे पैसे भी दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। बहरहाल बहुत खुश थे। मैंने स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लिया है। बहुत ख्वाहिश के बावजूद भी काशिफ से मिलने पिंडी नहीं जा सकी हूँ, शेरजान की वजह से। लेकिन मैं उसे खत लिखती रहती हूँ और वो भी बाकायदगी से जवाब देता रहता है। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर रश्क आता है। फराज से कोई राब्ता नहीं है, वो अभी तक मुशहरा में ही है। तुमने सैंड्रा और हारिस के बारे में लिखा है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। फिर जब वहां अमन हो जाएगा तो या हम उन्हें मिलने जाएंगे या उन्हें यहाँ पाकिस्तान बुला लेंगे अपने पास। उनकी शादी के लिए कुछ मंगवाना हो तो जरूर लिखना। शुक्र है तुम्हें भी छुट्टी पे आने का ख्याल तो आया। मैंने भी पूरे महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब इजाजत। शेरजान की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत प्यार पहुंचे। खुदा हाफिज, तुम्हारी SSG। Daleko je moj mali zamak, ali još miriše zambak, ali nema nikog da ga bere, nema nikog da mu sofru stere, ali nema nikog da ga bere, nema mene da mi sofru stere. Kušer je vama dobar čovjek, toliko je dobro učinio za mene. Zato si njemu rekao neke stvari koje nisi mogao meni direktno da kažeš. Bilo je me strah da mi nećeš ostaviti da sam izgubio nogu. Eto, stekao sam ti izdanje. Sad mogu hodati, trčati. Hoćeš da se trkamo? Ne, vidjela sam te kako trčiš. Sad je red na mene da me bude strah. Zašto tako pričaš? Nećeš razumjeti. Nešto mi iznutra govori da ako prihvatim tvoju ljubav ćeš pobjeći jednog dana. Daj mi jedan dobar razlog zbog kojeg bi pobjegao od najljepše djevojke u Bosni. Hajde, reci mi. Zato što sada možeš trčati. जी सर, गुलशेर साहब के खाना बीबी की शादी पे चले गए हैं, लेकिन मैं लोडिंग शुरू करा दी है। इंशाल्लाह आधे पौने घंटे तक मैं आपके पास हूँगा। और दूसरे अपने बंदों को बताएं कि बहुत एहतियात के साथ आए और आप इस तरह करें, मुझे जरा एक्सप्लोसिव की डिटेल बताएं। और सर 10 डब्बे आई एक्सप्लोजर के हैं, 2 डब्बे डेटोनेटर के हैं और सर आपने 4 डब्बे प्राइमर के कहे थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 मिले हैं। और दूसरी ठीक है, ये सब आप जल्दी भेजें, यहाँ हमारी ब्लास्टिंग रुकी हुई है और गुलशेर साहब जैसे आते हैं मेरी बात करवाएं। ओवर। राजर, और तैयार गए, बच्चियों के भी उठ गए, तेरा टीमा नहीं मिलना।
में डांस नहीं किया? मुझे कहा था यार, इस मुजम्मिल का बड़ा ही दिल कर रहा था। अच्छा तुम नाचे थे? क्या बात कर रहे हैं सर, सारे यूनिट में इससे अच्छा झूमर कोई नहीं नाचता है। खाली झूमर नाचते ही हो या कहीं पहनाए भी है झूमर किसी को? नहीं सर, कहते सर। अब बकवास नहीं कर, मुझे जानकारी कितनी बड़ी चीज है तू। सर हम दोनों आपसे वैसे भी एक बार की माफी मांगनी थी। क्यों, क्या हुआ? हमारा ख्याल था कि आपका बीवी ज़ादा के साथ कोई चक्कर चल रहा है। अच्छा देख लो फिर, आदमी आंखों से देख के भी कैसा धोखा खा जाता है। चलेंगे हो रहे हैं, पीटीआर को भाग दो और तुम्हारे लिए मोर्चे में। Alpha Kilo 7 for Imam. Over. Alpha Kilo 7 for Imam. Over. Imam for AK-7, send over. सर इधर काफी शेलिंग हो रही है और आपके बीच में तो काफी नुकसान हुआ सर। और सर 4 गोले हमारे पोस्ट के बिल्कुल पास गिरे हैं। ओवर। इमाम फॉर AK-7, आप इस तरह करो, फौरन एक BTR और कुछ आदमी लेकर पेट्रोलिंग पे रवाना हो जाओ। लेकिन ख्याल करना, सब SOPs को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना और जो ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई चीज देखते हो तो फौरन मुझे इत्ला करो। ओवर। बिल्कुल ओवर। आउट। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। रेडी सर। बहुत करीब से है, लगता है सर इस पहाड़ी पे आ गया। मुझे नहीं रुको, मैं इस पहाड़ी की टॉप पे जाकर देख रहा हूँ क्या सिचुएशन है। तुम लोग यहीं पे रुको। सर आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं भी साथ चलता हूँ आपके। और मैं कोई लड़ना थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी एब्सेंस में तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। ओके।
करता हूँ, आप थोड़ा बिचारा के ले जाओ और जरा उसको। शेर, बैग बशीर, अच्छी जवान, देवाल कौन? अभी आपको तो पता है हमारे इंजीनियर्स वहां सड़कें वगैरह भी बना रहे हैं। इस सिलसिले में ऑब्वियसली उन्हें पहाड़ वगैरह भी तोड़ने पड़ते हैं, एक्सप्लोसिव्स भी यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब कैप्टन गुलशेर वगैरह उस पीटीआर में पेट्रोलिंग के लिए निकले, इट वाज लोडेड विद एक्सप्लोसिव्स। हाउ मेनी वर देयर इन इट? सर कैप्टन गुलशेर मिलाकर 8 लोग थे, किसी का भी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है बॉडीज आइडेंटिफाई होने की पोजीशन में भी नहीं है। बॉडीज का तो सवाल ही नहीं। Excuse me, can you tell me which part of Bosnia is this? Look here, nurse. Please ask someone whether they have informed the UN office about me or not. Pacjent pita mnogo pitanja. 1 minute, please. Do you understand English? A little. Okay, look. You people can't do all this to me. I'm a representative of United Nations. First you fired at me, and then you're keeping me here as a prisoner. On what account? I'm sorry, Captain, but I don't know about all this. If there is anything that I can help you, please say it. Okay, I want that the unit quarters and my unit should be informed about my whereabouts. Okay.
Please, write down your particulars. I'm going to make it sure that it's done. I will see you in the evening. Thank you. Yes, it is true. Da, tačno je. Bosnian Muslims expect us to give them arms and ammunition. Bosanski muslimani su očekivali da im damo naoružanje i municiju. But we have not done so. Ali mi tako nismo radili. Number one, we are here as part of UN forces to keep peace and not to take sides. And number two, if any one of us does want to do it, it is not possible because each and everything that we bring from our country is listed and the proper record is maintained here at the UN office. Ispravna dokumentacija se drži u kancelarijama Ujedinjenih nacija. Ne verujem ti. I don't believe you. Well, znamo da ste to radili. We know that you were doing it. Samo ne možemo dokazati. But we cannot prove it. Sad ćeš nam dati napismeno kako i koliko ste dali. Now you will give me in written how and how much. I to će nam biti pismeni dokaz. And that will be our proof. Okay, and you have to wait for the rest of my life to take some writing. U redu. Onda se mora do kraja mog života čekat na to pisani dokument. Čekat ćemo cijeli tvoj život. We will wait till end of your life. Ajdemo. Još jedna stvar. But one more thing. Nemoj grešiti u očekivanju bilo kakve pomoći od UN-a. Niko ne zna da si živ. Don't be mistaken expecting any help from the UN. Nobody knows that you are alive. I'm sorry sir, हालांकि मुझे पता था but still it came as a surprise. आप please बैठे, मैं बैठ के बताता हूँ. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरी काशिफ is here sir. Right. Sir please. Please come in.
ठीक है यार। आई एम सॉरी सर, हालांकि मुझे पता था बट स्टिल इट केम एज अ सरप्राइज। आप प्लीज बैठे, मैं बैठ के बताता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी काशिफ इज हियर सर। राइट सर, प्लीज कम इन। वालेकुम सलाम। इट्स वुडन सर। आई नो, लेकिन तुम इतने नॉर्मल अंदाज में अंदर आए हो और इतना अच्छा सल्यूट किया है कि मैं तो भूल ही गया था। आओ बैठो। थैंक यू सर। बैठो। इट्स रियली कमेंडेबल काशिफ कि तुम अब भी आर्मी को सर्व करना चाहते हो। तुम्हारे यहां अंदर आने से पहले मेरे ख्यालात कुछ डिफरेंट थे। मैं सोच रहा था कि तुमने तो एक जज्बाती फैसला कर लिया है और चीफ ने भी तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है, सो हम भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। बट आई मस्ट एडमिट कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। सो टेल मी, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? सर जिन दिनों में सेशन में था, मैंने सेशन के मुताबिक बहुत पढ़ा और फिर सीनियर से डिस्कस करके अपने तौर पे ये जानने की कोशिश की है कि जो मिशन हमारे कामयाब हुए थे वो क्यों हुए थे और जो कामयाब नहीं हो सके उनमें क्या कमी रह गई थी। अच्छा। फिर इसके बाद सर जो वक्त मैंने अस्पताल में और घर में गुजारा है, उस दौरान भी मेरा ज़हन मुसलसल इन्हीं लाइंस पे सोचता रहा है सर। सर आप मुझे एक कंप्यूटर दे दें और साथ में एक प्रिंटर दे दें, मैं आपको अपने प्लान्स पेपर पे लाके दे देता हूँ। लेकिन तुम टाइपिंग कैसे? सर लोग एक उंगली से भी तो टाइप कर ही लेते हैं। हाँ ठीक, ओके। थैंक यू वेरी मच सर। Будьте пожливі, Сані. Дайте му що je neophodno, jer on nam treba. Razumijem. Jeste. Bolje biti ovdje nego na prvoj liniji. Šta misliš koliko će ga držati ovdje? Za mjesec god se tiče mene, a kad ne ubije. Ja, treba im kao odut. Spotegnut malo. Ne piješ. हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो तोहफा तुम छोड़ जाती हो ना मेरे लिए, एक सेकंड के लिए दूसरा नैपी लेने के लिए गई हूँ और सारा बिस्तर खराब कर दिया। इस आखिरी उम्र में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो तोहफा तुम छोड़ जाती हो ना मेरे लिए, एक सेकंड के लिए दूसरा नैपी लेने के लिए गई हूँ और सारा बिस्तर खराब कर दिया। इस आखिरी उम्र में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। आंटी आप भी अजीब है, शौक भी है इसे इतना रखने का और तंग भी पड़ रही है।
कोई तंशन नहीं पड़ रही, ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, अगर पढ़ भी जाऊं तो क्या है, एक रिटायर्ड जनरल साहब है ना घर पे इसकी नैपियां बदलने के लिए। आगू ने सुन लिया ना तो सुन ले, क्या तुम्हारे आगू से डरती हूँ? हाँ बोलो, फोन क्यों किया है? शिरजान कहीं पूछी थी आंटी क्या कर रहा है, जरा आवाज तो सुनाए उसकी। सॉरी, अभी सोया है, आवाज से आवाज नहीं सुना सकती। आंटी सोते भी की आवाज सुना दें। हाय, इतनी बेचैनी है, चुटकी काट के जगा दूं? हाय नहीं आंटी, खबरदार। कैसी तकलीफ पहुंची है, ऐसे जैसे तुम्हें उसे काट ही देती ना। आपका कोई पता है, मुझे भी तो काटनी थी ना। तुम उस वक्त 6 साल की थी और ये 6 महीने का है, गुलगुला सा। इसे कोई चुटकी काट सकता है? हाथ ना तोड़ दूंगी उसके। हेलो, कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं आंटी, सोची थी 6 महीने गुजर भी गए। हाँ बेटा, वक्त की तो अपनी रफ्तार है, उसको तो गुजरना ही है। अच्छा बोलो, तुम कब आओगी? आंटी देर हो जाएगी, अभी तो बहुत काम है। चलो कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से काम करो। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। स्कूल 10 दिन के लिए बंद रहेगा। अल्लाह हाफिज। जी शहनाज। मैडम आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैडम, बच्ची के पेरेंट्स आए हुए हैं और उन्होंने एक बहुत अजीब बात की है। कह रहे हैं कि बच्चों की होमवर्क की फोटोकॉपीज और मेडिकल टेस्ट के पैसे वो खुद दे रहे हैं। ये सारा खर्चा तो स्कूल उठाया करता था। शहनाज, बच्चों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और हम किसी सूरत में ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई टेस्ट होता है तो उसके अखराजात उसके पेरेंट्स से उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं मैडम, लेकिन जो हमारी इनिशियल फीस है उसमें मेडिकल टेस्ट के आधे पैसे स्कूल देता है। और अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सारे फन फेयर, चैरिटी शोज और डोनेशंस किसकी हैं? जो पेरेंट्स ये सब अफोर्ड कर सकते हैं वही अपने बच्चे यहाँ दाखिल करते हैं। इन सब चीजों से स्कूल एक्सक्लूसिव रहता है। एक्सक्लूसिव स्कूल? ये कोई बिजनेस या आर्ट स्कूल है कि यहाँ एडमिशन मेरिट और पैसों पर होता है? ये एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है और हर स्पेशल बच्चा एक्सक्लूसिव होता है। क्या एक अमीर स्पेशल बच्चा ज्यादा हकदार है स्कूल में एडमिशन के लिए गरीब बच्चे से? शहनाज, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये सारे मामले तुम्हारे सोचने के नहीं है। बिजनेस तुम हम पे छोड़ दो। बिजनेस? इज दिस व्हाट द स्कूल इज ऑल अबाउट? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। शहनाज, ये स्कूल एक कमर्शियल वेंचर ही नहीं, हम इन बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। नहीं मैडम, आप सिर्फ अमीर बच्चों की मदद कर रही हैं। आपकी कमिटमेंट बच्चों के साथ नहीं, उनके पैसे से है। That's enough, शहनाज। आप अब अपनी क्लास में जाइए। It's not enough, madam, and I quit. मैं तो ये स्कूल छोड़ के जा रही हूँ और अगर मुझे इन बच्चों का ख्याल ना होता जो इस स्कूल में है तो मैं अखबार भर देती आपके खिलाफ और पूरी कोशिश करती कि ये स्कूल और इस जैसे सारे स्कूल बंद करवा दूं। और अगर खुदा ने चाहा तो मैं एक ऐसा स्कूल चला के दिखाऊंगी जिसमें प्रायोरिटी बच्चे होंगे, उनका पैसा नहीं। हमारी शादी को दिन कितने हुए? तो कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है। 1 साल? तुमने सिखाया साल ना हो गया, हफ्ता हो गया। मेरा तो ख्याल था कि अब तुम्हारी जगह शेरजान फोन उठाता होगा। मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता हूँ for 2 reasons। कम ऑन फराज, हमारे यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई रीजंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओहो, सुन तो लो भाई, एक मेन वजह तो यह है कि शेरजान को पता होना चाहिए कि कोई उसका चाचा वाचा भी है। इतना बड़ा हो गया है और अभी तक मैंने उसे देखा तक नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि दूसरी और तीसरी बात हमारे यहाँ आके कर लेना। आ जाओ बस फौरन, चाहो तो अभी आ जाओ, चाहो तो रात का खाना हमारे साथ खा लो।
नहीं नहीं, रात खाने के बाद आऊंगा और कॉफी पीऊंगा फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, ओके फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं कहाँ मर गया है। तुम मुझे यहाँ से फोन कर रहे थे और तुमने तो रात को आना था। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। वैसे भी 1.5-2 साल से मैंने कोई शरारत नहीं की। ये इतनी सारी चीजें किसके लिए ले आए हो? जिसके लिए लाया मुझे उसके पास ले चलो। ये शेरजान है, पक्का पठान है। गुलशेर है दूसरा। You think so? मेरा भी यही ख्याल है। आंटी नहीं मानती। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चलो ऊपर चलते हैं। कॉफी थोड़ी देर से मिलेगी, लतीफ बाजार गया है। No problem. और हाउस लाइफ ठीक है, रुकती थोड़ी है। गुलशेर के पेरेंट्स कैसे? कोई कांटेक्ट है उनके साथ? अब आए थे 1-2 दफा, फिर मैं गई थी शेरजान को लेके गाँव। अगले महीने फिर जाऊंगी। अब्बा को मैंने जिद करा के एक जनरल स्टोर खुलवा दिया। अब तो आंटी भी काफी बिजी हो गई हैं। गांव की जितनी भी औरतों को दस्तकारी वगैरह आती है ना, हमने उन सबको एम्प्लॉय कर लिया। बहुत अच्छा काम चल रहा है अब तो। वेरी गुड। तुम्हें याद है मेरे नौशेरा जाने से पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस पर तुमने मुझे कहा था कि वॉर फ्रंट पे जाए बगैर भी बंदा हीरो बन सकता है, और ये कि जितना पैसा है मेरे पास इसको वेलफेयर के काम में यूज करना चाहिए। मुझे याद है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात पे गौर कर रहा था। यू मस्ट बी नोइंग कि हमारी फौज में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड दैट अगर कोई ऑफिसर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जिसमें पैसे का लेन देन है तो मसला हो सकता है। तो मैंने इसका एक हल निकाला, और वो ये कि फंड्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, काम कोई और कर ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक स्पेशल बच्चों की एनजीओ बना सकते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं जिनमें ये पैसा मल्टीप्लाई के इन्हीं स्कूलों में यूटिलाइज होता रहे, और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस भी मिल सकते हैं। नहीं फॉर गॉड्स सेक, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम पता नहीं यकीन करो या नहीं, बट इट्स अ फैक्ट कि तुमने मुझे इनकार करके गुलशेर से शादी की थी। ऑल्दो शुरू में तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता इस बात से, रातों को नींद नहीं आती थी मुझे, पक्का मेंटल केस हो गया था मैं। मगर जब ऐसा ऐसा ये बात समझ में आने लगी तो ना सिर्फ मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, बल्कि मुझे अपने ऊपर भी शर्म आने लगी। वो क्यों? इसलिए कि एक लड़की अपनी कन्विक्शन के लिए इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है, और मैं। अच्छा छोड़ो इस बात को। ऐसा करते हैं, आज और कल का दिन हम दोनों सोचते हैं। तुम सोचो कि तुम फंड्स कितने स्पेयर कर सकते हो, और मैं सोचूंगी कि मैंने कहाँ यूटिलाइज करेंगे। और वैसे भी कल तो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। वो क्यों? कम ऑन फराज, तुम्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था। अगर तुम मुझे आज रात फोन ना करते ना, तो मैं तुम्हें कल ऑफिस जरूर करना था विश करने के लिए। पिछली बर्थडे भी मैंने अकेले कमरे में बैठ के गाने सुन के गुजारी थी। तभी तो दोस्त है मेरे, दोनों को किसी की नजर लग गई। हाँ,
वो दोनों होते तो और बात होती। एनीवे, तुम डिप्रेस ना हो। इस समय तुम्हें कमरे में बैठ के गाने सुनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल खाने पे ले जाऊंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम सिर्फ चले चलो, खाना मेरी तरफ से। क्या फर्क पड़ता फराज? भाई एक तो गलत बात कर रही हो, ऊपर से इंसिस्ट भी कर रही हो। चलो ठीक है। शहनाज, you know what? I really miss Kulshir. I know. एक लगाऊंगा उल्टे हाथ की अगर बेईमानी की तो वापस रख इसको अपनी जगह पे। सर एक तो आपकी नजर बड़ी तेज है। तो होगी नहीं, नजर से तो खेल रहा हूं। चल बारी कर मेरी। ओ चिका, ले बेटा खैर मना ले अपने। 5 आए तो भी मरती है, 2 आए तो भी मरती है। या अल्लाह खैर। हिला हिला, जितना मर्जी हिला दे बेटा, दोनों में से एक तो आई है। बात सुन, जा मेरा भाई जाके कोई ऐसा गीटा लेके आ जिसमें ना 2 हो ना 5 हो, ठीक है? फेंकता या लगाऊं एक? ओ 2। चल चल शक्ल ना बना, चुप करके उठा ले। चल अपनी बारी कर। वो ठहर जा, टाइम हो गया, फोन मिला। 0342 363 747। अब सुनेगा कौन? मैं घंटी बज रही है सर। लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोगे फराज। ओ जलील आदमी, ये कौन सा तरीका है विश करने का? ये बड़ा लेटेस्ट तरीका है, अभी अभी इजाद हुए। बड़ी घटिया इजाद है। और सुना क्या कर रहा है? एडजुटेंटी का टंटा चल रहा है अभी? हाँ जाहिर है, कल फिर रिक्वेस्ट तो की है सीओ से सियाचिन की, देखो कब बारी आती है। ले सियाचिन, भाई अगले बड़ा सोच समझ के बंदे को भेजते हैं सियाचिन, हर लल्लू पंजू को उठा के थोड़ा भेज देते हैं। तेरा कार्ड मिल गया था, अब तुझसे फोन पे बात भी हो गई है तो डबल खुशी हो गई है। लाले बस देख ले, हमारे अलावा कोई घास डालता ही नहीं तुझे। घास का तो नहीं पता, अलबत्ता डिनर पे किसी ने बुलाया मुझे कल। हाँ झूठ बकवास, किसने किया? हाँ शनाज ने, उसको याद था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लड़की है यार, मुझे भी हर हफ्ते एक आधा कार्ड मिल जाता है उसका। मेरी तरफ से उसको थैंक यू कह दें और शेरजान को प्यार दें। बड़ा प्यारा है वो। पठान है ना। ओए तूने गौर किया, ये पठानों के और अंग्रेजों के बच्चे छोटे होते कितने प्यारे होते हैं, और बड़े होके पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। क्या बकवास कर रहा है? कुलशेर की जिंदगी में ये बात की होती ना तो फड़का देता वो तुझे। बहुत याद आता है यार, सोचता हूँ हम तीनों की जो यक्कों की ट्रेल थी ना, उसको नजर लग गई यार किसी की। अब तो उदास होने की तैयारी पकड़ है, इसलिए आज के लिए बस खुदा हाफिज। कल फोन पे बात करूंगा मैं, ठीक है? ओके फिर, खुदा हाफिज।
ये इतनी ज्यादा रोशनी में कैंडल्स की क्या लॉजिक बनती है भाई? मैडम, दिस इज मोर रोमांटिक। यार थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। चलो आज एक नई ट्रेडिशन सेट करते हैं। इन कैंडल्स की रोमांटिक लाइट में नहायत ही अनरोमांटिक किस्म की बातें करते हैं। तुम्हारे उन स्पेशल चिल्ड्रन की बातें। मेरे लिए तो वही बातें रोमांटिक हैं। बहुत रोमांस है उनमें। कुछ सोचा तुमने? बहुत कुछ, लेकिन सब डिपेंड करता है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, और जाहिर है वो तो तुम ही बता सकते हो। हाँ, अगर मैं बाबा जान से पैसे मांगूंगा तो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे कि क्यों चाहिए, एंड इफ आई नो हिम वो मना कर देंगे। गाड़ी बेच देता हूँ अपनी। तो तुम खुद क्या करोगे? कुछ ऐसी सी गाड़ी ले लूंगा, बाकी पैसे तुम्हारे। और वो कितने होंगे? यही कोई 20-25 लाख रुपए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। 20-25 लाख, दैट्स ग्रेट फराज। ये तो बहुत ज्यादा है। जो मेरे पास है उनमें मिला के तो हमारे पास इतने हो जाएंगे कि हम बच्चों का हॉस्टल भी शुरू कर सकते हैं और बिल्डिंग भी हमारी हो सकती है। गुड गुड नहीं, वेरी गुड फराज। तुम जानते नहीं हो कि ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो मिसेस गिलानी का स्कूल बंद ही करवा दूंगी, उसमें एक भी बच्चा नहीं रहने दूंगी। मगर तुम तो उनकी बड़ी तारीफ करती थी। आई वॉज रॉन्ग। अगर मेरा बच रहे मैं तो उन्हें शूट कर दूं। स्पेशल चिल्ड्रन के एक्सपेंस पे लूट रही हैं वो उनके पेरेंट्स को। सिर्फ कमाई का जरिया बनाया है उन्होंने अपने स्कूल को। लोग भी कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ फंड्स कब तक मिल सकते हैं? नेक्स्ट टाइम तुम इस गाड़ी में नहीं देखोगी। दैट्स ग्रेट फराज। अगर तुम्हारा यही जज्बा रहा ना तो तुम जो गाड़ी खरीदोगे मैं उसको भी बिकवा के तुम्हें एक साइकिल दे दूंगी, और उन फंड्स को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे। मुझे मंजूर है। दैट्स ग्रेट फराज। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Walaikum salam. You're Muslim? Alhamdulillah. Старались, что чубрено? Старались, что? Помните? Пошел. На ключи. शुक्र है आज इतने अरसे बाद तुमने अपने कपड़ों पे ध्यान तो दिया। आज दिन ही ऐसे फराज, तुम यकीन नहीं करोगे कि आज मैं कितनी खुश हूँ। हालांकि आंटी ने कहा भी था कि मैं 2-4 दिन सब्र कर लूं। क्यों भाई, खैरियत? भूल गए? कल गुलशेद की बरसी है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हें वाकई बता देना चाहिए था, हम इसे पोस्टपोन कर देते। नहीं फराज, हम कौन सा कोई अपनी जाती खुशी मनाने जा रहे हैं। एक तो सवाब का काम है, और फिर हम तो सिर्फ शामिल हो रहे हैं कुछ और लोगों की खुशी में। ये भी ठीक है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि बाबा भी आ रहे हैं तुम्हारे। इसमें भी तुम्हारा ही कमाल है, वरना बाबा जान तो इतने नाराज थे कि मेरे कहने पे कभी ना आते। हेलो फराज, हाउ यू माय सन? अस्सलाम वालेकुम मलिक बेटा, साहब। क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। मलिक साहब, मैं सख्त डरी हुई थी कि आप नहीं आएंगे। बेटा, डरने की क्या बात है? मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ जैसे बाहर से नजर आता हूँ। फराज ने मुझे बताया था कि आप हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे,
मुझे पता नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी बचपन की आदत ही कुछ ऐसी है कि काम करने के बाद ही बताया करता है, लेकिन इस बार इसने काम ही ऐसा किया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इसीलिए इस बार ये मार से बच गया। बच्चे यहाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह खुश भी रहेंगे मलिक साहब। आई प्रॉमिस यू दैट। आई फुली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब आइए, मैं आपको बच्चों से मिलाऊं। अजीज साहब, कई दफा मुझे ये लगता है कि कुशेर को अपनी मौत का पहले से ही पता था, इसीलिए उसको ये गाना इतना अच्छा लगता था। अब अगर तुम अपने चेहरे के हालात बदलो तो मैं तुम्हारे दिल के हालात बदलता हूँ। लो बदलिए, अब बोलो। ये क्लब कंपार्टमेंट खोलो, इसमें 2 लिफाफे वो निकालो, पहला वाला खोलो। 3 लाख रुपए ये किस लिए है? ये बाबा जान ने दिए हैं आप स्कूल के लिए। Really? तुम कितने बुरे हो फराज, इतनी बुरी पिक्चर पेंट की थी उनकी तुमने मेरे आगे। वो वाकई ऐसे नहीं थे, बट इज अ चेंज मैन नाउ। मुझे तो लगता है बेटे के साथ साथ बाप को भी बदल दिया। शट अप, जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। अब दूसरा वाला लिफाफा खोलो। 25 लाख रुपए? जी हाँ, ये बाबा जान ने मुझे दिए हैं ताकि मैं ये गाड़ी बेच के फिर से मर्सिडीज ले लूं। वाओ। पर असल खबर ये नहीं है, असल खबर तो ये है कि ये पैसे मेरे नहीं, हमारे। और जब तक मैं ये चेक कैश नहीं करा लेता, तुम ये सोच बताओ कि इनका करना क्या है। नहीं फराज, तुम जो हो ना, तुमने अपने बाबा जान को एक ऐसा पर्चा हल करने के लिए दिया है जिसकी उन्होंने तैयारी भी नहीं की हुई थी। एक आध क्वेश्चन तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर सवाल ज्यादा मुश्किल हुए ना तो उन्होंने पूरा पेपर ही बॉयकॉट कर देना। अरे तुम मेरे बाबा जान को नहीं जानती हो, ये पर्चा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा पैसा है उनके पास। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू हिम ये सारा पैसा मैंने ही तो खर्च करना है। मैं बनाती हूँ। कैसे खर्च करोगे फराज? जब तक तुमने मुझे सही रास्ते पे नहीं लगाया था, मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे खर्च करूंगा। तुमने मुझे वाकई बता दिया।
कॉफी पिए चुप करके। नहीं, इट्स अ फैक्ट, तुमने वाकई ही मुझे बदल दिया। अच्छा बस, मैं एम्बैरस होती हूँ अपनी तारीफ सुन के। चलो लगाओ अपना ब्रायन एडम्स। क्या याद रखोगे तुम? नहीं, रहने दो, तुम्हें नहीं पसंद तो। लगा दो, सुन मर लूंगी। मेरे पास भाग के कौन आएगा? शेरू, इधर लाओ बेटा जानी। Hey, that's a good one. इतनी बड़ी स्माइल के साथ भागो 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 इधर। आज शनाज आए तो संजीदगी से उससे बात करनी है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? नहीं, जल्दी क्या है? कौन सा 8-10 साल हो गए गुलशेर की डेथ को। दूसरा, ये बातें आपके करने वाली हैं। आप समझते नहीं है इन बातों को। कवारी होती तो और बात थी। जितना और टाइम गुजरेगा उतना एज फैक्टर भी काउंट होने लगेगा। मेरा तो ख्याल है तुम ओवर कॉशियस होती जा रही हो। शी इज नॉट मदर ऑफ इस्लाम। शेरजान हमारा बेटा है और हमारे पास रहेगा। ये अलग बात है। शेरू हमारा है। आपका क्या ख्याल है? इसे जाने दूंगी? शादी और नो शादी। मुझे असल में किसी और बात का इंतजार है। किस बात का? मेरा ख्याल है वो फराज में इंटरेस्टेड है। तुम स्पेकुलेशन करने की बजाय उससे डायरेक्टली खुद बात कर लो। शेरू, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6 सितंबर है। आज के दिन हम उस 6 सितंबर की याद मनाते हैं जब इस मुल्क पर एक दूसरे मुल्क ने बुरी नजर डाली। 6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली जंग आज भी वक्फे से जारी है। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान को बुलाया है जो इस जंग के ताजा तरीन हीरो हैं। सियाचिन के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और सितारे जुर्रत हासिल करने वाले उस वक्त के कैप्टन और आज के मेजर काशिफ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको सिर्फ काशिफ कहूं? जी नहीं, मुझे खुशी होगी। काशिफ, मुझे एहसास है कि जिस 6 सितंबर की हम याद मना रहे हैं उस जमाने में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, लेकिन मेरे दादा उस 6 सितंबर के हीरो हैं। उन्हें इस जंग में सितारा जुर्रत मिला था और अब मुझे। तो गोया यूनिफॉर्म आपको विरसे में मिली। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे फौज में आने के बाद हमारी 6 मुसलसल नस्लों का फौज में होने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अगर मेरा बेटा भी फौज में आ गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बगैर हीरो बने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फौज में मैं आना ही नहीं चाहता था। ये तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। और जिस दिन सियाचिन में मैंने अपनी पोस्ट को ज्वाइन किया उस दिन तक इतने साल मैं दिन रात फौज छोड़ने के मंसूबे बनाया करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी फौज के लिए आपने वो कर दिखाया कि आज सियाचिन में एक पोस्ट आपके नाम से मंसूब है? जी ये बहुत लंबी कहानी है।
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात बाबूजान? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। बाबूजान, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? ये सवाब का काम है। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने दीवाने थे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबूजान के वो सब कुछ था, अब नहीं है और ना ही आगे हो सकता है। बेटा, कोई वजह तो होगी। बाबूजान, ये फौज है ना, ये अलग ही दुनिया है। इसका अपना ही कल्चर है। हम लोग शहीदों की बेवाओं को इज्जत से देखते हैं, उन पे नजर नहीं रखते। तुम मुझे सबक दे रहे हो? मैं भी इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी जिसे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, अगर उसे और उसके बच्चे को सहारा देगा तो क्या बुराई है इसमें? बाबाजान, आप समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम और तुम्हारा कल्चर कैसे नापसंद कर सकते हो एक ऐसी बात को जिसे खुद रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो इससे भी अच्छी बात है। और जब मैं होश में आया तो मेरा रावलपिंडी सीएमएच में था और मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगें काट दी गई थी। तो इतने बड़े जिस्मानी लॉस से आपके मोराल में कोई फर्क आया है? जी हाँ, बहुत फर्क आया। जिस फौज में मैं रहना नहीं चाहता था, अब उसे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, अब जरा जंग जदल की बातों से हटकर कुछ नर्मो नाजुक बातों की तरफ आते। मेरा मतलब है कि जंग के मैदान में आपने दुश्मन के फौजियों के तो बहुत से शिकार किए हैं, लेकिन कोई दिलशिल भी शिकार किया है? जी, इस फील्ड में मैं बिल्कुल फेलियर हूं। ना कोई रोमांस, ना शादी, बस एक मंगनी हुई थी। हुई थी? क्या मतलब? वो असल में मुकम्मल इंसानों के लिए किसी नामुकम्मल इंसान का साथ देना बहुत मुश्किल था, इसलिए। और वैसे भी जिंदगी का ये चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। अब तो मेरी नजर में, दिमाग में, दिल में हर तरफ फौज ही फौज है। अस्सलाम वालेकुम मेजर काशिफ। अच्छा, मैं भी आता हूं।
काशिफ ऑफ। अस्सलाम सर। बैठो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। इसमें कुछ कमजोरियां हैं, और वो भी शायद इसलिए कि कुछ जगहों पे तुम थोड़े ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बट अदरवाइज इट इज सिंपली अमेजिंग। इस प्लान पर अगर अमल ना हुआ तो उसकी वजह ये होगी कि शायद हम